Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. As you already know that we have started a new batch of class 12th. In the last class also we have uh, discussed the syllabus of your macroeconomics, as well as we know that the you have to study the two books in the class 12th economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay, so I have already told to you all that there are 12 chapters in your macroeconomics and the 10 chapters of your Indian economic development. So basically in the last 12th economics, Indian economic development, all the chapters which is related to Indian economy on the eve of independence, when the India got independence, after that Indian economy, what is the situation of the Indian economy between the 1950 to 1990. Next we have discussed uh, the new economic, we will study the economic policy that were introduced in 1991, that is called the New Economic Policy NEP 1991, in which the three concept, basically the liberalization, privatization, globalization, has been introduced in our economy. Next we have to discuss the poverty chapter, the situation of the poverty or the situation of poor in India, human capital formation, rural development, employment situation, infrastructure situation. These chapter that we are going to discuss, as well as the developmental experience of the India and its neighbor country. These chapter we are going to discuss in the Indian economic development, as well as we will discuss the macroeconomics, in which there are total 5 or 6 units are there, and we have to discuss total 12 chapters in your macroeconomics. So total chapter of economics in class 12 is 22. Okay, so in today's class also we are going to discuss first of all the syllabus of your economics. So what we are going to discuss. Okay, so let's get started. So in the macroeconomics, we are going to study the first of all meaning of the macroeconomics. Okay, so macroeconomics and what are the different subject matter and the scope of macroeconomics. Okay, what are the different scope, किसका स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि हम लोग इसमें पढ़ते क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी इम्पोर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, की मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है. राइट, नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर 1 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पढ़ेंगे जो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक, एज वेल एज उसके मीनिंग पढ़ेंगे, उसका इंटरडिपेंडेंस एंड दी डिस्टिंक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरडिपेंडेंस एंड डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे. राइट, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है. उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, की हाउ the microeconomics is dependent upon the macroeconomics and how macroeconomics is dependent upon the microeconomics. राइट, ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, कि अगर हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे, तो उनके बीच का डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टू स्कूल्स ऑफ थॉट. ओके, टू स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ेंगे. दैट इज़ टू स्कूल्स ऑफ थॉट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द क्लासिकल स्कूल एंड द कीन्शियन स्कूल. राइट, क्लासिकल स्कूल क्या होता है और कीन्शियन स्कूल क्या होता है. तो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द कीन्शियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्कूल एंड कीन्शियन स्कूल. जो क्लासिकल स्कूल है और जो कीन्शियन स्कूल है, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में. राइट,
नेक्स्ट है जो चैप्टर 2, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउ द fund or the money, basically money, income is circulated, how, in which phases the money is circulated. So we will take the first one is, that is basic economic activities. What are the different economic activities and the non-economic activities? Economic activities are those activities in which we earn something, right? Whenever we do something, सो वी गेट समथिंग इन रिटर्न, हम लोग उनके रिटर्न में कुछ ना कुछ मनी को जनरेट करते हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटीज़ थ्रू विच वी डू नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ इनकम. ओके, दोज एक्टिविटी नेवर एवर जनरेट दी मनी इन रिटर्न. ओके, मनी कोई भी रिटर्न में नहीं जनरेट करता है. ठीक है, जिसमें हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या क्या पढ़ेंगे, और and that is meaning and the phases of circular flow. मीनिंग क्या है सर्कुलर फ्लो की और उसके फेजेस क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स क्या हैं सर्कुलर फ्लो के, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट. ओके, इनकम और प्रोडक्ट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड व्हाट इज़ मनी फ्लो. ठीक है, रियल फ्लो में बेसिकली फ्लो किसका होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मनी फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ दी बेसिकली दी मनी इज़ जनरेटिंग और मनी इज़ सर्कुलेटिंग इन दी इकॉनमी. ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं इसमें. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो. मनी फ्लो और रियल फ्लो का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में. ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉडल और दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि डिफरेंट फॉर्म्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या क्या होते हैं. तो बेसिकली इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 2 सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकॉनमी. ओके, 2 सेक्टर मॉडल मतलब 2 सेक्टर क्या क्या हो गए, हाउस होल्ड सेक्टर और दी फर्म सेक्टर. इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. और 2 सेक्टर इकॉनमी जिसमें हम लोग एक फाइनेंशियल सिस्टम के साथ करेंगे. फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स वो सारे सिस्टम थ्रू विच इनकम क्या होती है, जनरेट होती है. जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी बैंकिंग से बोरो भी कर सकते हैं और लेंड भी कर सकते हैं. बट अगर विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम में बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा, मतलब कोई भी मनी का बोरोइंग और लेंडिंग नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज़ लीकेजेस एंड द इंजेक्शन. ओके, so what is the meaning or what is the leakage and what are the injection. Okay, leakage means it is the withdrawal of money from the economy, and injection means to inject something, like we add money in the economy. ओके, इंजेक्शन में, लीकेज में क्या करेंगे, लीकेज मतलब लीक होना. लीक होने का मतलब है कि मनी जो है वो क्या हो रहा है, बेसिकली लीक कर रहा है. कहाँ से, इकोनॉमिक से, मतलब मनी विथड्रॉ कर रहा है. और इंजेक्शन मतलब मनी क्या हो रहा है, इंजेक्ट कर रहा है इन द इकॉनमी. नेक्स्ट हम बात किसकी करते हैं, मीनिंग ऑफ द स्टॉक एंड फ्लो. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टॉक, इट इज़ द वेरिएबल विच डील्स विद दी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. और फ्लो में हम लोग एट अ पीरियड ऑफ टाइम बात करते हैं. किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. रिलेशन क्या होता है स्टॉक और फ्लो का, कि अगर स्टॉक है और फ्लो है उनके बीच में कैसा रिलेशन है. ठीक है, थर्ड चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ नेशनल इनकम एंड दी रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट. ओके, नेशनल इनकम क्या है, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं और बेसिक उसके कंसेप्ट क्या हैं, उनको हम लोग देखेंगे. ओके, पहला हो गया आपका एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. जो भी गुड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका यूज़ कैसे हो रहा है, उसका एंड कहाँ पे है. एंड मीन्स कि उस गुड्स का यूज़ का एंड कहाँ पे हो रहा है, मतलब कहाँ पे वो बेसिकली किसके थ्रू वो यूज़ किया जा रहा है, वेदर इट इज़ फॉर दी प्रोड्यूसर और फॉर दी कंज्यूमर. राइट, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं.
तो देखते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। फीचर्स ऑफ द फाइनल गुड्स, जो भी डिफरेंट फाइनल गुड्स होते हैं। डिफरेंस किसका? इंटरमीडिएट गुड्स एंड दी फाइनल गुड्स। व्हाट आर द डिफरेंट? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं उसके, और फाइनल गुड्स क्या क्या होता है उनको देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड द कैपिटल गुड्स। व्हाट आर द डिफरेंट कंजप्शन गुड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैपिटल गुड्स, इनको हम लोग थोरोली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स सिंपली एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। कैसे एडिशन करते हैं? मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके, सो देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप भी होते हैं। अब उन टाइप्स में हम लोग किसकी किसकी बात करते हैं? दैट इज़ वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, और क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड दी नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। दैट इज दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, GDCF। और नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस एंड नेट इज टोटली डिफरेंट. It's not a totally different, it is totally depend upon the depreciation. Okay, so when we add depreciation in net, it becomes equal to the gross investment. Okay, next that we are going to discuss in this, that is the concept of the depreciation. Depreciation is also called as the consumption of the fixed capital, right? So we will discuss the causes of the depreciation. What are the different causes of depreciation? Depreciation reserve fund or the provision for the depreciation. Next we will discuss the capital loss or the unexpected obsolescence. Okay, next we will discuss करेंगे हम लोग क्या? provision for the capital loss. ठीक है, capital loss का provision क्या हो रहा है. Next we are going to discuss that is डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसिएशन एंड द कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस और डेप्रीसिएशन में क्या डिफरेंस है? ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? डोमेस्टिक और दी इकोनॉमिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री किसको बोलेंगे? किसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है? जिसमें हम लोग एग्जांपल्स किसके देखेंगे? नॉन रेसिडेंट्स के देखेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन किसको बोलेंगे? फिर फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज़ मार्केट प्राइस. नेक्स्ट हम लोग फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेक्स्ट NIT दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? डोमेस्टिक इनकम एंड दी नेशनल इनकम. ओके, तो डोमेस्टिक इनकम देखेंगे, किसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, किसको नेशनल इनकम बोलेंगे. ओके, सो डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दी डिफरेंस बिटवीन दी NFIA एंड दी नेट एक्सपोर्ट, कि NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? फैक्टर पेमेंट एंड द ट्रांसफ़र पेमेंट. व्हाट इज़ फैक्टर पेमेंट एंड व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट. सो फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट, डिफरेंस क्या होता है?
फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का ये डिफरेंस देखेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या है, मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यूजेस क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, ये देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या हैं। सो बेसिक फार्मूलाज देखेंगे, 3 बेसिक, और फिर एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो भी एग्रीगेट रिलेटेड होते हैं नेशनल इनकम से वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को अगर हम लोग को मेजर करना है वो हम कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसमें हम लोग को पढ़ना है पहले वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, मेथड और दी प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ दी एस्टिमेटिंग दी नेशनल इनकम, कि डिफरेंट मेथड क्या हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के, स्टेप्स क्या क्या हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिकॉशंस फॉर दी एस्टिमेटिंग दी नेशनल इनकम, जब भी हम लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें तो डिफरेंट प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे, एंड प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग, कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, मतलब डबल काउंटिंग होता क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या होगा, पहला वैल्यू 3 मेजरमेंट है नेशनल इनकम के। सबसे पहला हम लोग का है वैल्यू एडेड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्ट और द आउटपुट मेथड। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि हम नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं, ओके स्टेप्स देखेंगे एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के स्टेप्स। एंड द लास्ट वन इज वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस फॉर द इनकम मेथड। इनकम मेथड के क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। जो थर्ड मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो उसका मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, स्टेप्स फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, एंड प्रिकॉशन फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, ये सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी, ठीक है। आइटम्स जो जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और किसी अदर एग्रीगेट से जो एक्सक्लूड हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस पढ़ेंगे, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे किसके बीच का, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड द कांस्टेंट प्राइसेस। बेटर इंडिकेटर देखेंगे, कौन सा बेटर इंडिकेटर होता है, वेदर रियल होता है और नॉमिनल, रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर होता है और नॉमिनल जीडीपी बेटर इंडिकेटर होता है, वो देखेंगे। फिर कन्वर्जन देखेंगे नेशनल इनकम का, कैसे हम लोग करेंट प्राइस में करेंट प्राइस को इनटू कांस्टेंट प्राइस में करेंगे। और लिमिटेशंस देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और जीएनपी का कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे, उसकी व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस, डिफरेंट लिमिटेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग मीनिंग ऑफ द ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या होता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसको देखेंगे। एंड द मीनिंग ऑफ द जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मतलब प्राइस इंडेक्स क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द जीडीपी डिफ्लेटर, वी विल आल्सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, कि ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे जो डिफरेंट आइटम्स हम लोग ले रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। तो इसमें पहला क्या है कि आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड दी देयर रीजंस, ठीक है, जो आइटम इंक्लूड हो रहे हैं वो देखेंगे, और क्या देखेंगे, उसके रीजंस देखेंगे कि नेशनल इनकम में वो इंक्लूड क्यों हो रहे हैं। फिर क्या देखेंगे, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड देयर रीजंस,
और आइटम जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उसके रीजंस क्या है वो देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, आइटम्स क्या क्या जो भी आपके क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं और जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उनके देखेंगे, रीज़न देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे आइटम डेट आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। फिर ट्रीटमेंट देखेंगे डिफरेंट आइटम्स के फॉर एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, ट्रीटमेंट देखेंगे डिफरेंट आइटम्स का कि वो आइटम्स इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका वो कि एस्टिमेट करते टाइम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम। जो 3 मेथड्स हैं उनका रिकॉन्सिलाइजेशन करेंगे, फिर से उनको देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका चैप्टर मनी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें पहला हमें क्या देखना है, मनी देखना है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, मतलब ओरिजिन जिसकी बात करते हैं हम लोग कि मनी का ओरिजिन क्या है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, मनी की मीनिंग देखेंगे। ओके, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना है, दैट इज़ नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, और मनी एंड नियर मनी क्या होता है। मनी जो विच इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है, बट नियर मनी वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी कैश। हमको इनको क्या करना पड़ता है, कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है आपका मनी सप्लाई। सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, मीनिंग ऑफ द मनी सप्लाई, components of the money supply, measures of the money supply, what are the different measures, जिसमें हम लोग M1, M2, M3, M4 ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। और फिर नेक्स्ट पढ़ना है हमें लिमिटेशन और द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम, की लिमिटेशन क्या है और प्रॉब्लम क्या हो रही है बार्टर सिस्टम की, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शंस ऑफ द मनी, मनी का क्या फंक्शन है, प्राइमरी और द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, मनी कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज दैट इज़ बैंकिंग। ठीक है, मीनिंग क्या होती है बैंकिंग की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक कैसे फंक्शन करता है, उसका क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे, मतलब मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसकी मीनिंग और उसके फीचर्स देखेंगे, व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द दिस, राइट। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। ठीक है, डिफरेंस किसके बीच का, व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक एंड व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, उनके बीच का क्या डिफरेंस होता है। ये आपका हो गया यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 3 इज़ रिलेटेड टू योर डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, की इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जिसमें हम लोग ठीक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें मीनिंग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग ये सब थॉरोली डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर इकॉनमी। 4 सेक्टर इकॉनमी में देखेंगे, 4 सेक्टर इकॉनमी में क्या क्या आता है, पहला फर्म, सेकेंड आता है आपका हाउस होल्ड, थर्ड आता है दैट इज गवर्नमेंट, एंड फोर्थ वन इज ROW दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, 4 सेक्टर हो गया इकॉनमी में।
राइट। 4 सेक्टर हो गया, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेसिकली दैट इज 4 सेक्टर इकॉनमी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकॉनमी। जब हम लोग 2 सेक्टर इकॉनमी की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड थर्ड सेकंड हो जाएगा फर्म, ठीक है। और जिसको फर्म को और क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक्टर में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, लीनियर कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। लीनियर कंजप्शन फंक्शंस क्या होते हैं, लीनियर सेविंग फंक्शन क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। मीनिंग क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट सप्लाई के, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन की मीनिंग क्या होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस करेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मीनिंग ऑफ द सेविंग फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव देखेंगे। टाइप्स ऑफ द सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव वी विल डिस्कस, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस दैट इज derivation of the saving function, or it is also known as the saving curve from the consumption function curve, or consumption function curve from the saving function or the curve। जब क्या होगा, सेविंग फंक्शन दिया होगा आपको, कंजप्शन फंक्शन डिराइव करना होगा। जब कंजप्शन फंक्शन दिया होगा तो आपको सेविंग फंक्शन क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। नेक्स्ट क्या है आपका, एडिशन टू द एपीसी एंड एपीएस। मतलब एडिशन किस में होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन टू द एमपीसी एंड एमपीएस। एडिशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, डिफरेंस क्या होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, फिर मीनिंग ऑफ एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ एक्सपोज्ड सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कंसेप्ट किसका, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, वॉलेंट्री का क्या होता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंसेप्ट होता है। इसको हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड द मल्टीप्लायर, ठीक है। इनकम कहाँ डिटरमाइन होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मल्टीप्लायर, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय AD&AS अप्रोच। AD&AS अप्रोच से डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम का बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से कैसे होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसमें क्लासिकल थॉट और किंशियन थॉट पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे जहाँ तक आपको याद होगा, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ थॉट देखेंगे जिसमें क्लासिकल थॉट और किंशियन थॉट, क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के थॉट में, क्लासिकल और किंशियन, ये देखेंगे। कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन द क्लासिकल एंड किंशियन, क्लासिकल और किंशियन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनके बीच का डिफरेंस है वो देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, रिलेशन देखेंगे मल्टीप्लायर और दी एमपीसी का, ठीक है। फिर रिलेशन किसका देखेंगे, मल्टीप्लायर एंड एमपीएस का, मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर देखेंगे, मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर
मल्टीप्लायर। तो इस चैप्टर में इनकम डिटर्मिनेशन एंड द मल्टीप्लायर में ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं।